Hello children, welcome to your English video class. Children, as you know that we are doing grammar and in grammar we are doing tenses. We have completed simple present tense, present continuous tense and we are doing past tense. I have already explained to you what tenses are, how verbs are connected with tense, how verbs are important for tense. All these I have explained to you in my previous videos. If you have not seen, please go through that, please watch that video. And since past 2-3 videos, what we are doing is that the chapters of your main course book, from the chapters of your main course book, we are taking out verbs. And if they are already in past form, then I am telling you the root form of that verb, or you can say the original verb, the present form of verb from which it was changed to past form. And if the verb is in present form, then I am telling you how to change it into past tense. So in both the way we are increasing our vocabulary. आपके जो चैप्टर हैं, आपके जो टेक्स्ट बुक है, उसी के वर्ब्स हम अभी तक कर रहे हैं. उसमें बहुत सारे वर्ब्स हैं, तो उन्हीं को हम ले रहे हैं. इफ दे आर इन प्रेजेंट फॉर्म, उसका मैं आपको पास्ट बता रही हूँ, और पहले से पास्ट है तो मैं उसका प्रेजेंट फॉर्म भी आपको साथ में बताते चल रही हूँ कि किस तरह वो रूट वर्ब या प्रेजेंट फॉर्म से पास्ट फॉर्म में चेंज हुए हैं. चिल्ड्रन, ये जितने भी पास्ट टेंस के जो वर्ब्स होते हैं उसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि सारे वर्ब जो हैं वो ईडी लगाकर ही पास्ट टेंस में बन जाए. एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, समटाइम्स द होल स्पेलिंग इज चेंज्ड, समटाइम द प्रोनाउंसिएशन इज टोटली चेंज्ड. सो यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. ये आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा. वाइल रीडिंग द चैप्टर, गो थ्रू द वर्ब्स दैट आई हैव पिक्ड आउट फॉर यू फ्रॉम द चैप्टर. जो चैप्टर में से मैं आपके लिए वर्ब्स निकाल रही हूँ ढूंढकर, वो आप जब चैप्टर पढ़ें तो उस पर ध्यान दें कि हाँ ये वाले वर्ब्स थे और ये पास्ट फॉर्म में है या ये प्रेजेंट फॉर्म में है. देन ओनली यू विल बी एबल टू learn it and you will be able to retain it for a long time. Since so far we have completed till chapter number 9. One chapter is left, that is chapter number 10. उसमें से हम देख लेते हैं कौन से verbs हैं. Then a poem is left and then we will move on to your grammar book. फिर उस grammar book exercise पर हम जाएंगे. तो चलिए chapter 10 the 3 little pigs है, इसमें से करेंगे. जो वर्ब्स पहले ही हम कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स के, उन्हें हम रिटन में नहीं लिखेंगे. मैं आपको ओरली वो बता दूंगी, ओरली आपको मैं रिवाइज करवा दूंगी. और जो नए वर्ब्स हमें मिलेंगे, व्हेन विल कम अक्रॉस अ न्यू वर्ब, देन आई विल राइट इट ऑन द बोर्ड. The first verb is lived and this we have already done. lived हम कर चुके हैं. It is past tense of live. live का past tense होता है lived. live, lived. Then there is sleep. sleep का भी हम कर चुके हैं. sleep का past tense होता है slept. this we have done in the previous videos. so sleep, slept. sleep, slept. Then begin and began also we have done. The past form is given in the chapter, that is began, and its present tense is begin. begin का past tense होता है began. तो ये सारे हम already कर चुके हैं. As I have told you, now we will come across many verbs that we have already done. क्योंकि हम इतने सारे chapters कर चुके हैं तो repetition definitely होगा. Then decide, that also we have done. decide का है decided. decide, decided. And then again make we have done. make का made, that we have done. make,
and past tense is made. Present tense is make and past tense is made. Then another word is gather. Now this we will write. पहले यहाँ लिख लेते हैं present tense and here we will write past tense. तो यहाँ पर हमारा होगा gather, G-A-T-H-E-R, and past tense of gather is gathered, G-A-T-H-E-R-E-D, gather, gathered. Next is put. ये भी मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ. पुट का पास्ट टेंस पुट ही रहता है. कट का पास्ट टेंस कट ही रहता है. देन अनदर वर्ब इज आस्क, A-S-K, आस्क. पूछते ना व्हेन यू आस्क समथिंग, तो पास्ट टेंस इसका क्या होगा? इसका पास्ट टेंस ed लगाना है बस. A-S-K-E-D, आस्क, आस्क्ड, आस्क, आस्क्ड. Then there is a verb called stay, S-T-A-Y, stay, and past tense is stayed. You stay somewhere, you stay and then stayed. Another is refuse, R-E-F-U-S-E, refuse, to say no, to deny something, to say no to somebody, that is called a refuse. And past tense of refuse is R-E-F-U-S-E-D. Refuse, refused. Refuse, refused. Then want we have done already. Want, wanted. ये हम कर चुके हैं पहले से ही. Then come का भी हम कर चुके हैं. come का होगा past tense came. come, came. Then blow, blow का भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं. वी हैव डन इट फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 जहां पर ब्लू था. पास्ट टेंस ऑफ ब्लो इज ब्लू. इन दिस चैप्टर ऑल्सो पास्ट टेंस इज गिवन. पास्ट टेंस ही दिया हुआ है, ब्लो का ब्लू दिया हुआ है. प्रेजेंट फॉर्म इज ब्लो एंड पास्ट टेंस इज ब्लू. ब्लो, ब्लू. देन another verb which is given here, the past tense is given, that is went, and it is the past tense of go. Go ka past tense went. Go, went. Then run. Run we have done but not from the chapter. ये हमने ग्रामर बुक से एक बार किया था. run का past tense होता है ran. Let me write this because ये चैप्टर में से नहीं था. Run, ran, run, ran. Then take, done, already done in the previous videos. Take ka past tense took. Take, took. Then one is dig. Dig मतलब खोदना कोई चीज को. You make a hole on the ground. That is called dig, और dig का past tense होगा dug, D-U-G, dug. पूरी स्पेलिंग चेंज हो जाती है ना. dig, dug. dig का past tense dug. Then another one is finish, F-I-N-I-S-H. finish का past tense होगा finished, F-I-N-I-S-H-E-D. finish, finished. Finish, finished. Now we'll see one more is there. Let me rub this so that we can have some space. Let's revise this. Gather, gathered, ask, asked, stay, stayed, refuse, refused, run, ran, dig, dug, finish, finished. These are the present form or the root form of the verb, and this is the past tense, the past form of the verbs.
अब देख रहे हैं हम फील। अब हमारा जो वर्ब है उसका नाम है फील, FEEL, फील। एंड द पास्ट टेंस ऑफ फील इज फेल्ट, FELT, फील, फेल्ट, feel, felt. Then rest we have done. Again work, there is a verb called work, और ये भी हम कर चुके हैं। वर्क का पास्ट टेंस होता है वर्कड, वर्क, वर्कड। देन सी का भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पास्ट टेंस होता है सॉ, सी सॉ, सी एंड देन सॉ। देन अनदर वर्ब इज नीड, दिस ऑल्सो वी हैव डन, नीड, नीडेड, नीड, नीडेड, ये चैप्टर 6 में हम कर चुके थे। देन वी हैव बिल्ड, BUILD, बिल्ड, बिल्ड का पास्ट टेंस होता है, बिल्डेड नहीं होता है, बिल्ड, बिल्ड, बिल्ट, BUILT, बिल्ट, बिल्ड, बिल्ट। देन लुक हम पहले ही कर चुके हैं, लुक का लुक्ड, लुक, लुक्ड। देन वी हैव कीप हम कर चुके हैं ऑलरेडी, कीप का पास्ट टेंस केप्ट, कीप, केप्ट। In this chapter it is given kept and I am telling you the root verb. Kept is already mentioned in the chapter, kept, and the root verb, the present tense is keep, keep, kept. We have done this in the previous video. Then tired also we have, tired is not verb, it is adjective. Then realize, realize also we have done, realize, realized, this we have done in chapter number 7, है ना। तो realize हम कर चुके हैं, realize का होगा realized। और इस तरह से almost आपके एक और बचा है construct, CONSTRUCT, construct is to make something, and past tense of construct is constructed, CONSTRUCTED, सिर्फ ED लगाना है। कंस्ट्रक्ट का कंप्लीट स्पेलिंग लिख के उसमें ED लगा देना है, कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्टेड। देन this we have done. Then in this chapter, जो हम चैप्टर अभी कर रहे हैं, इसकी एक्सरसाइज में भी कुछ पास्ट टेंस दिए हुए हैं। लेट मी राइट दोज ऑल्सो फॉर यू इफ वी हैव नॉट डन। वॉन्ट वी हैव डन, वॉन्टेड उसका पास्ट टेंस मैं आपको बता चुकी हूँ, वॉन्ट, वॉन्टेड। आस्क, आस्क्ड, दिस वी हैव डन। बोरो हमने नहीं किया है, BORROW, बोरो का पास्ट टेंस होता है borrowed, borrow, borrowed, borrow, borrowed. Then talk we have done, talk, talked. One more is there, pray, 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 and past tense of pray is PRAYED, इसमें भी ED ही लगाना है, pray, prayed. Then another verb is mix, MIX. This I am doing from the exercise given in this chapter, chapter number 10. Past tense का है, इसलिए करवा रही हूँ। Mix, mixed, MIXED, mix, mixed, mix, mixed. Then another verb is pull, 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 and the past tense is pulled, PULLED, pull, pulled, pull, pulled.
अब इसको रेज कर देते हैं क्योंकि आई नीड सम मोर स्पेस. फील, फेल्ट, बिल्ड, built, construct, constructed, borrow, borrowed, pray, prayed, mix, mixed, pull, pulled. ये जितने भी ये वाले थे सब में ईडी लगाकर ही हमने पास्ट टेंस बनाया है. तो ये तो इजी हो जाते हैं जिसमें ईडी लगाना है, दैट बिकम्स इजी, कि बस ईडी लगा, जो मेन वर्ब है उसमें ईडी लगाने से आपका पास्ट टेंस बन जाता है. दैट इज इजी. बट हमेशा ऐसा नहीं होता है. एज आई टोल्ड यू, कुछ में पूरी स्पेलिंग सब कुछ चेंज हो जाता है. तो चलिए अब आगे और कर लेते हैं. इरेज दिस. चलिए, अनदर वर्ब इज लॉक. लॉक से याद आया कि लॉक नाउन भी होता है ना. लॉक इज ऑल्सो नाउन एंड ऑल्सो लॉक इज नाउन एंड ऑल्सो वर्ब. LOCK ये नाउन भी है और वर्ब भी है. जो आप अपने दरवाजे पर लगाते हो दैट इज अ लॉक. जो जिसमें चाबी डाल के आप घुमाते हो दैट इज लॉक. आप अपने दरवाजे में लॉक लगाते हो दैट इज नाउन. इट इज अ नेम ऑफ अ थिंग. लेकिन व्हेन यू लॉक अ डोर, जब आप दरवाजे को लॉक कर रहे हो दैट इज एन एक्शन. तब आप एक्शन कर रहे हो. यू आर लॉकिंग द डोर, यू लॉक द डोर. तो दैट बिकम्स वर्ब. तो लॉक जो है वो नाउन भी है, एक थिंग का भी नाम है, एंड इट इज ऑल्सो नेम ऑफ एन एक्शन. आप जब एक कोई एक्शन करते हो लॉक करने का तो दैट बिकम्स वर्ब. बट व्हेन इट इज अ थिंग, जब उस सामान के रूप में आप उस लॉक को लेते हो देन इट बिकम्स अ नाउन. तो लॉक जो है वो नाउन भी हो जाता है और वर्ब भी हो जाता है. तो ये ध्यान रखना आपको. यहाँ पे हम उसको वर्ब के जैसे ले रहे हैं, नॉट टेकिंग इट एज नाउन. यहाँ उसको हम नाउन नहीं मान रहे हैं, वी आर टेकिंग इट एज वर्ब. तो ये वो हमारा लॉक, LOCK लॉक, और उसका पास्ट टेंस है LOCKED. लॉक, लॉक्ड, लॉक, लॉक्ड. देन एक और है JOIN, जॉइन, और जॉइन का पास्ट टेंस जॉइंड. Joined, 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 join, joined. Then another verb is start, 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 and STARTED, started, started. Then pluck, PLUCK. And past tense is PLUCKED, plucked, plucked. ठीक है. अच्छा, और इस चैप्टर का तो हो गया. एक लास्ट में आपका बचा है पोएम. लेट्स सी इफ देयर इज एनी वर्ब इन दैट. अगर उसमें होगा डेफिनेटली वी विल डू. यहाँ पर लुक है. लुक हम कर चुके हैं. जो हम कर चुके हैं दैट वी विल नॉट डू इन राइटिंग. सो लुक, पास्ट टेंस इज लुक्ड. देन देयर इज नो सच वर्ब. इसमें एक भी ऐसा वर्ब नहीं, बस एक है प्लेस. प्लेस है, प्लेस का हो जाएगा प्लेस्ड. टू कीप समथिंग, प्लेस का प्लेस्ड. प्लेस इज ऑल्सो अ नाउन. किसी जगह को भी हम प्लेस बोलते हैं एंड हियर इट इज यूज्ड एज वर्ब. फिर उसके बाद है लव. हम कर चुके हैं. लव का है लव्ड, लव, लव्ड. ठीक है. एंड दैट्स ऑल. आपके चैप्टर के जितने भी वर्ब्स थे मैक्सिमम, अगर कोई एक आध मिस हो गया हो, बट मैक्सिमम वी हैव डन. हम सारा कर चुके हैं. जितने भी इस आपके पूरे जो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक में जितने भी वर्ब्स थे ऑलमोस्ट ऑल वी हैव डन. कोई हो सकता है कुछ मिस हो गया हो. इन
by mistake, but I have taken all the verbs. हम बहुत सारे verbs हम कर चुके हैं. Now अब हम क्या करेंगे, जो हमने verbs किए हैं वो हम sentence की form में देखेंगे. Now we'll see in the form of sentence कि वर्ड्स तो हमको मिल गए बहुत सारे, अब उसको सेंटेंस में आप कैसे करेंगे वो देख लेते हैं. जैसे ना आपके ग्रामर की बुक में दिया हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है, एंड देन उसी को थोड़ा सा चेंज करके सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंस दिया है. लेट्स गो थ्रू दोज सेंटेंसेस, उसको हम देख लेते हैं. एक साइड में मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस लिखती हूँ, और इधर में हम करेंगे सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस. नाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस हम पहले देख लेते हैं. आई प्ले इन द पार्क डेली, जो काम हम रोज करते हैं दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो हमारे हैबिट में है, जो जिसके लिए हम हैबिचुअल हैं, दैट इज ऑल सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो आई प्ले इन द पार्क डेली, ये मेरा रोज का काम है. आई प्ले इन द पार्क डेली, दिस इज अ सेंटेंस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. I play the park. अब अपना वर्ब पे ध्यान दो, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ना कि सारा जो गेम है, सारा जो खेल है वो तो वर्ब का ही है ना. उसी से पता चलता है कि टेंस क्या है. तो आप सिर्फ वर्ब पे पहले ध्यान दो. वर्ब मतलब मेन वर्ब भी हो सकता है और साथ में हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है इफ देयर इज एनी. बट यहाँ पर भी हम कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं. तो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज फॉर टेंस ओनली, कि टेंस में आप वर्ब पे आपको बेसिक फोकस आपको वर्ब पे देना होता है और हेल्पिंग वर्ब पे देना होता है, और अकॉर्डिंगली फिर सेंटेंसेस में चेंजेस करने पड़ते हैं. तो आई प्ले इन द पार्क डेली, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया. अब जब इसको पास्ट में बनाना होगा तो वी हैव टू चेंज द वर्ब, द फॉर्म ऑफ द वर्ब. इस वर्ब का फॉर्म को ही चेंज करना होगा. ठीक है, तो आई तो रहेगा, प्ले का हो जाएगा प्लेड, PLAYED, मतलब ये अब ED लग गया. इधर आप देखेंगे तो प्ले, और यहाँ पर वो प्लेड हो गया, पास्ट टेंस हो गया. आई प्लेड, मैंने खेला, मैं रोज खेलती हूँ और मैंने खेला. आई प्लेड इन द पार्क लास्ट इवनिंग, मतलब कल शाम को. आई प्लेड, अभी डेली नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि डेली जो है वो प्रेजेंट को शो करता है. आई प्ले इन द पार्क डेली, इट शोज द प्रेजेंट फॉर्म. ओके, played in the park last evening. ये लास्ट इवनिंग क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये हमको ये बताना है ना कि ये चीज हो चुकी है. अगर हम यहाँ भी डेली लिख देंगे, अगर डेली ही लिख देंगे तो फिर वो पास्ट टेंस नहीं हो पाएगा. मैंने कहा ना, वर्ब मेक्स द डिफरेंस. अब यहाँ क्योंकि प्लेड लिखा है, आई प्लेड, मैंने खेला, तो मैंने डेली खेला तो नहीं बोल सकते ना कि मैंने रोज खेला. नो, तो वो भी पास्ट में अगर मैंने रोज खेला तो कब खेला था, अ ईयर बैक, कहीं ना कुछ इसमें ऐड करना पड़ेगा. तो इट्स बेटर यहाँ हमने लिख दिया लास्ट इवनिंग, मतलब पिछले जो बीता हुआ शाम है, कल शाम जिसको बोलते हैं ना, कि कल शाम मैंने पार्क में खेला, अभी नहीं खेला, पास्ट टेंस. प्लेड, आई प्लेड इन द पार्क लास्ट इवनिंग. नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक और.
he buys sandwiches, मतलब it is in his habit to buy sandwiches, वो sandwiches खरीदता है, buy sandwiches। तो ये habitual action की तरह हम ले लेते हैं, he buys sandwiches। ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस, he buys sandwiches। और ये जो buys जो है ये एस लगाकर जो हम शो कर रहे हैं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है कि वो सैंडविचेस खरीदता है, मतलब उसकी आदत है खरीदना, या भले वो डेली ना खरीदता हो लेकिन वो खरीदता है। दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस कि उसकी हैबिट में है या वो अक्सर ये काम करता है, मोस्ट ऑफन ही डज दिस, तो ही बाय सैंडविचेस। लेकिन जब इसका हम पास्ट टेंस बनाएंगे तो हम बाय का क्या कर देंगे, मैंने आपको क्या बताया था बाय का पास्ट टेंस, व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ बाय? आप थोड़ा सा सोचिए कि क्या बताया था, याद आ रहा है? बॉट। जिनको याद आया है वेरी गुड, जिनको नहीं याद आया है लर्न इट, ओके। बाय का पास्ट टेंस होता है बॉट, बाय बॉट। और स्पेलिंग भी एकदम अलग है, बॉगट नहीं है, ये बॉट है, BOUGHT इज बॉट। ही बॉट, उसने खरीदा। अब क्योंकि वो उसने खरीदा, ये पास्ट की बात है, उसने खरीदा, तो हम बताएंगे कि उसने क्या खरीदा, सैंडविचेस। ही बॉट सैंडविचेस, SANDWICHES। अब यहाँ पे जो डी लगा है ना, ये सैंडविचेस नहीं बोलेंगे हम, इसको सैंडविचेस बोलेंगे। डी अगेन साइलेंट है, इसमें डी का साउंड नहीं आएगा। अक्सर आपने लोगों को सुना होगा कि मैं आज सैंडविच खा के आया हूँ, या मैंने आज सैंडविच खाया है। इट्स नॉट सैंडविच, इट्स सैंडविच, एन आएगा, ये डी का साउंड नहीं आता। आई एट सैंडविच, आई एट सैंडविच, आई लाइक सैंडविचेस, sandwiches, D is silent, okay? I like sandwiches. He buys sandwiches, he bought sandwiches, ठीक है? तो buy का हो गया bought। Next is we celebrate, सेलिब्रेट क्या है, प्रेजेंट टेंस का है, तो वी सेलिब्रेट दिवाली एवरी ईयर, ठीक है? वी सेलिब्रेट दिवाली एवरी ईयर। वी सेलिब्रेट दिवाली एवरी ईयर, मतलब ये हम करते हैं, दिस इज हैबिचुअल, हम ये हमारा हैबिचुअल है, या हम ये अक्सर करते हैं, तो हर साल हम करते हैं। दिस इज रिपीटेड एक्शन कि हम हर साल दिवाली मनाते हैं। वी सेलिब्रेट दिवाली एवरी ईयर, तो इसका होगा वी CELEBRATED, ई तो पहले से ही है, सिर्फ डी लगाना है। वी सेलिब्रेटेड दिवाली समटाइम्स अगो, अभी थोड़े दिन पहले मनाया था ना। वी सेलिब्रेटेड दिवाली सम टाइम अगो, अभी थोड़े दिनों पहले हमने दिवाली मनाया था, पिछले महीने ही हमने दिवाली मनाया था, तो ये बहुत रिसेंट का टाइम है। तो अगर मनाया था, अभी मना नहीं रहे हैं, मनाएंगे भी नहीं, अभी नहीं बोल रहे हैं, हमने मनाया था। वी सेलिब्रेटेड, हमने जो है दिवाली मनाया था कुछ समय पहले, हमने दिवाली मनाया कुछ समय पहले, मनाया। वी सेलिब्रेटेड दिवाली सम टाइम अगो, तो ये हो जाएगा पास्ट टेंस में। तो ये जो सेलिब्रेटेड वर्ड है, ये इसकी वजह से हमारा सेंटेंस जो है वो पास्ट में हो गया। और टू प्रूव दिस वी हैव रिटन इट सम टाइम अगो, मतलब कुछ समय पहले हमने ये जो है दिवाली मनाया था। तो इस तरह से हमने 3 सेंटेंसेस अभी देखे। सॉरी ये 3 था, रिटन 4, सॉरी इट इज 3, ठीक है, ये 3। वी हैव सीन 3
sentences. We will do few more to see the difference between simple present tense and simple past tense. बट आज की वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं और आगे जो और सेंटेंसेस है दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.